Assalamu alaikum viewers. My name is Sohail Ahmed Shaikh, lecturer in Commerce, Government Arts and Commerce College, Larkana. I teach banking in class intermediate. Before starting a lecture, I am really grateful to the worthy Secretary, College Education Department, Government of Sindh, who has initiated the online lecture programs for the betterment of the students, keeping in mind the prevailing COVID-19 pandemic. So dear students, the topic that we are going to discuss today, that is check and its different types. Dear students, this is a very important topic. I hope and I am sure after discussing this topic, you will be able to understand the entire concept of check and all the other concepts which are concerned with this. Dear students, these are the contents of the chapter. What we have to discuss in this chapter, first of all, check and parties to a check, essential elements of a check, features or requisites of a check, types of check, crossing and its different types, dishonor of a check. All of these topics that we have to cover in this chapter. Yes, dear students, we have a variety of definitions of a check over here. At first, we are going to read out the different definitions of the check. After then, understanding the concept of check in nutshell. So, according to the Negotiable Instrument Act 1881, defines a check as a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. There is another definition of check. A check is a written order given to a bank by a depositor requiring him to pay on demand a certain sum of money either to a specified person or to his order or to the bearer. So there is a third definition of check. A check is a printed instrument and an unconditional order in writing signed by the drawer to his banker to pay a certain sum of money to the bearer or to the order. These are the definitions. There is another definition, my dear students. Please listen to me very carefully. A check is a negotiable instrument that contains an unconditional order to the bank to pay a certain sum of money mentioned in the instrument from the drawer's account. Whose drawer? We have already discussed, as you remember, we have already discussed in the parties. How many parties are involved in the check? There are 3 parties we have already discussed. Okay. So, a check is a negotiable instrument that contains an unconditional order to the bank to pay a certain sum of money mentioned in the instrument from the drawer's account. अच्छा, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आइए हम नटशेल में समझते हैं कि ये चेक जो है, ये चेक क्या चीज है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि चेक क्या है। ये चेक एक प्रिंटेड इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक का, जो कि हमेशा अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अनकंडीशनल ऑर्डर हम उसको कहते हैं जिसमें कोई भी कंडीशन ना हो, क्योंकि हमने ये बात पहले भी समझी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारा जो भी होगा वो अनकंडीशनल होगा। ठीक है। सो चेक एक प्रिंटेड इंस्ट्रूमेंट है बैंक का, जो कि अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और हमेशा राइटिंग में होता है। चेक हमेशा हमारी रिटन फॉर्म में होती है, हम उस पर लिखते हैं। वर्बल ऑर्डर हम बैंक को कोई नहीं देते, जिसपे हम लिखते हैं। जो हमें पैसे चाहिए होते हैं वो हम उस चेक में मेंशन करते हैं, और पैसे किसको देने होते हैं उस बंदे का नाम भी हम चेक में लिखते हैं। वो मतलब कोई भी मखसूस आदमी होता है, वो हम उसका नाम चेक पे लिखते हैं। ठीक है। और आफ्टर देन बैंक को हम ऑर्डर करते हैं कि ये चेक आ रही है, ये एक स्पेसिफिक पर्सन, एक मखसूस आदमी को देना है, इसकी पेमेंट एक मखसूस आदमी को करनी है या उसको करनी है जिसके लिए हम आपको ऑर्डर कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड।
Okay. After then, there are parties to a check. How many parties are there in a check? So, dear students, there are three parties are there in a check. Number one is drawer. Number two is dry. Number three is pay. So, drawer, dry, and pay. Who's drawer? Drawer is actually a person who maintains an account with the bank and issues a check with his signature provided on the specimen signature card is called drawer. हम drawer को सिंपल वर्ड्स में अकाउंट होल्डर भी कहते हैं और हम और सिंपल वर्ड्स में मेकर ऑफ द चेक भी कहते हैं. मेकर ऑफ द चेक इज कॉल्ड ड्रावर या अकाउंट होल्डर जो होता है उसको भी हम ड्रावर बोलते हैं. ठीक है. आफ्टर देन ड्राई. अच्छा, ड्राई क्या होता है? द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन. द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन मतलब जिस बैंक में चेक ड्रा होने के लिए या पास होने के लिए आ रही है उस पार्टी को हम कहेंगे ड्राई. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द पर्सन डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ड्राई. हम किस पर्सन को डायरेक्ट करेंगे कि इसको पे करें? डेफिनेटली बैंक ही होगी जो कि हमें इस चेक की पेमेंट करेगी. इन केस ऑफ अ चेक it is always a banker with whom the drawer maintains an account so as to constitute him the customer. Definitely ड्राई जो भी हमारा होगा वो बैंक की होगी. सो ड्रावर कौन होगा? ड्रावर अकाउंट होल्डर होगा जो चेक पे साइन करेगा. और ड्राई कौन होगा? ड्राई बैंक की होगी, बैंक को हम ऑर्डर करेंगे. एंड आफ्टर देन द थर्ड पार्टी इज पे. पे क्या है? Pay is the person named in the check to whom or to whose order the payment is to be made. जिस बंदे को पेमेंट होगी उसको हम पे कहेंगे. और इन सिंपल वर्ड वी कैन से to whom the amount is to be paid. जो बैंक में लेके जा रहा है वो हमारा क्या है? जो बैंक में लेके जा रहा है और जिसका चेक पे नाम हो उसको हम पे कहेंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. ओके जी. आफ्टर डिस्कसिंग द पार्टीज वी हैव एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ चेक. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ चेक? नंबर वन इज डेट. नंबर टू इज अमाउंट. नंबर थ्री इज पे. नंबर फोर इज सिग्नेचर. सो डेट. It is very much important to write date on the check because without having the date on the check, your check would not be accepted by the bank. Means it would be dishonored by the bank. So check के ऊपर date लिखना तमाम जरूरी है. अगर हम चेक पे डेट नहीं लिखेंगे तो हमारी जो चेक है वो डिसऑनर होगी, वो बैंक में पास नहीं होगी, उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी. ओके. आफ्टर देन अमाउंट. द अमाउंट दैट यू वांट टू विथड्रॉ मस्ट बी रिटन ऑन द चेक. विदाउट मेंशनिंग द अमाउंट द चेक वुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द बैंक. अगेन वही बात, अगर आप चेक पे डेट तो लिख रहे हैं पर अमाउंट नहीं लिख रहे हैं. आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे ही चेक बैंक में जाएगी हम उनको फोन करेंगे कि सर इतना अमाउंट लिख दें बस. नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने ये चीज ऑलरेडी मेंशन की हुई है कि चेक हमेशा रिटन फॉर्म में होगी. ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्म. ओके डियर स्टूडेंट्स. सो एसेंशियल एलिमेंट्स में नंबर पहली जो चीज है वो क्या है? डेट. और सेकंड वन इज अमाउंट. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू राइट द अमाउंट इन द चेक. आफ्टर देन पे. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पे क्या है. As we've already discussed in the previous slide, pay is the person to whom the amount is to be paid or a person named in the check. So, this is also very much important to write. हम किस आदमी को ये चेक दे रहे हैं उसका नाम चेक पे लिखना तमाम जरूरी है. ठीक है. After then signature. Signature is very much important. You have to
you have to put your signature on the check. If you want to withdraw the amount from the bank, you will have to put your signature, and that signature which you have provided on the specimen signature card at the time of account opening. So dear students, these are the essential elements of check. Number one is date, जो कि हमने डिस्कस किया. Number two is amount. Number three is pay, and then signature. After then, we are going to discuss features of a check. कि check के features क्या होते हैं. So number one is it must be in writing. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि चेक हमेशा रिटन फॉर्म में होगी. ठीक है. आफ्टर देन द अनकंडीशनल ऑर्डर, जैसे कि हमने ये भी डिस्कस किया है चेक की डेफिनेशन में. जब हम चेक की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे कि उसमें अगेन एंड अगेन हम ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि चेक हमारी जो भी होगी या जो भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो अनकंडीशनल होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर होगा जिसमें किसी किस्म की कोई भी कंडीशन नहीं होगी. ठीक है. So number one is it must be in writing. Number two is the unconditional order. Number three is drawn on a specified bank only. इसका क्या मतलब है dear students? Drawn on a specified bank only means कि जैसे कि हमारा MCB में अकाउंट है कि हमारी जो चेक है वो भी MCB अकाउंट से ही पास होगी. जैसे कि हमारा अकाउंट UBL में है तो हमारी चेक वहीं से ही पास होगी. जैसा कि हमारा अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में है तो हमारी चेक वहीं पे जाएगी पास होने. ऐसा नहीं होगा कि हमारा अकाउंट हो नेशनल बैंक में, हमारी चेक हो नेशनल बैंक की और हम पास करवाने जाएं यूबीएल में. ऐसा नहीं होगा. सो ये एक चेक का फीचर है कि ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक ओनली. चेक हमेशा जो पास होगी वो स्पेसिफिक बैंक में होगी, वो जिसकी चेक होगी. आफ्टर देन पेमेंट ऑन डिमांड. पेमेंट ऑन डिमांड मीन्स जो आप चेक पे पैसे लिखेंगे वो ही आपको पैसे मिलेंगे. ऐसा नहीं होगा कि आप लिखेंगे 50,000 और बैंक वाले आपको देंगे 40,000 के भाई जो 10,000 है वो आप कर लेना. नहीं, ऐसा नहीं होगा. पेमेंट ऑन डिमांड, जो भी आप डिमांड करेंगे पेमेंट उस हिसाब से होगी. आफ्टर देन सम सर्टेन ऑफ मनी ओनली. सम सर्टेन ऑफ मनी ओनली मींस जो आप अमाउंट लिखेंगे वही आपको अमाउंट मिलेगा. और पेमेंट ऑन डिमांड, आप जब भी डिमांड करेंगे आपको वही पेमेंट मिलेगी. ठीक है. सम सर्टेन ऑफ मनी ओनली, जो भी चेक में पैसे लिखे होंगे आपको वही पैसे मिलेंगे. आफ्टर देन पेएबल टू द स्पेसिफाइड पर्सन, जो के चेक पे नाम लिखा होगा पेई में. पेई में जो भी चेक पे नाम लिखा होगा उसी को ही हम पैसे देंगे. बैंक वाले कहेंगे उसी को ही हम पैसे देंगे. ठीक है. वो आप अपने ऊपर या आपकी मर्जी है कि आप चेक कौन सी निकाल रहे हैं, जो कि इसके बाद हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ द चेक. हम उसमें ये समझेंगे कि चेक के जो टाइप्स होते हैं वो चेक के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. एक हमारी बियरर चेक होती है, एक हमारी क्रॉस चेक होती है, एक हमारी ऑर्डर चेक होती है, और हमारी ओपन चेक होती है, ब्लैंक चेक होती है, मतलब होती है. ये सब चीजें हम इस टॉपिक के बाद में वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो पेएबल टू द स्पेसिफाइड पर्सन, इट मींस चेक पे जिस पे हम नाम लिखेंगे, चेक पे जिसका भी हम नाम लिखेंगे उसी को ही पेमेंट करेंगे बैंक वाले. ठीक है. या जिसके लिए हम ऑर्डर करेंगे. आफ्टर देन साइन बाय द ड्राफ्ट. अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. साइन बाय द ड्राफ्ट, it means drawer will have to put his signature on the check. If he will not put his signature on the check would not be accepted by the bank. So dear students, these are the features of a check. I hope you must have understood. Okay. After discussing on the features of the check, we are going to discuss on kinds or types of a check. अब हम ये समझ रहे हैं कि चेक के टाइप्स कौन से होते हैं, चेक के काइंड्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है जी. सो देयर इज अ बियरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक एंड ओपन चेक. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल व्हाट एक्चुअली द बियरर चेक इज. व्हाट इज बियरर चेक? Bearer check is always payable to the person who presents it to the bank for encashment. The bearer is required to put his signature on the back of the check.
Any person who holds this check can encash it easily. ओके, बेयर चेक क्या होती है? एक ऐसी चेक जो किसी भी पर्सन को या जिसकी पेमेंट किसी भी पर्सन को पे हो सकती है। जो भी बंदा बैंक में चेक लेके जाए उसको बैंक वाले पेमेंट कर दें। लेट सपोज नाम लिखा हो चेक के ऊपर, पे में नाम लिखा हो अयाज अली और सोहेल अहमद वो चेक बैंक में लेके जा रहा है, तो वो चेक उसी को ही पेमेंट होगी। बट एक और चीज लिखी हुई है कि bearer इज रिक्वायर्ड टू पुट हिज सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ द चेक। bearer जब भी बैंक में चेक लेकर जाएगा वो उसको बैंक वाले जब भी पैसे देंगे तो पहले बोलेंगे कि इस चेक के पीछे आप 2 सिग्नेचर्स करें। उसका मतलब ये होता है कि a particular person has received the specific amount which is mentioned in the check. ओके, सो बेयर चेक समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स? एक ऐसी चेक जो कोई भी बंदा बैंक में लेकर जाए उसको पेमेंट आसानी से हो जाए, आसानी से उसको पेमेंट हो जाए। ठीक है, बैंक वाले कोई भी सवाल नहीं करेंगे कि आप क्यों आए हैं, ये पर्सन क्यों नहीं आया, ये बंदा क्यों नहीं आया, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, या नाम ये लिखा हुआ है तो आप क्यों आए हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अ पर्सन हु होल्ड्स द चेक कैन इनकेश इट easily over the counter in the bank. Clear? This is called bearer check. और order check क्या होता है? A check which is payable to a person, a check which is payable to a particular person or order is called an order check. This type of check cannot be encashed by a person other than that named therein. The ownership of an order check can be transferred through endorsement. Endorsement क्या है, ये इसके बाद हमारा टॉपिक है, हम उसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझें कि ऑर्डर चेक क्या है। ऑर्डर चेक की पेमेंट सिर्फ और सिर्फ उस आदमी को होगी, उस पर्सन को होगी जिसका उस चेक में नेम हो। ठीक है, मैं आपको चेक दिखा के उसमें एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि हम बैंक को कैसे ऑर्डर दे रहे हैं कि इस चेक की पेमेंट सिर्फ और सिर्फ इस आदमी को हो जिसका हमने चेक पे नाम लिखा है। ठीक है, उसकी बाकायदगी से एक वेरिफिकेशन होगी, वो कैसे होगी, किस हिसाब से होगी, वो मैं आपको एग्जांपल्स में चेक दिखा के वो मैं आपको एग्जांपल्स में बता रहा हूं इसके बाद। ठीक है, ऑर्डर चेक क्या है? मतलब ड्रार बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि हमने इस चेक पे एक नाम लिखा है अयाज अली, तो इस चेक की पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अयाज अली को ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वो चेक सोहेल अहमद बैंक में लेके जा रहा है तो उनसे बोलेंगे कि आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं। आप तो अयाज अली नहीं है, क्यों कि आपको पेमेंट ये चेक नहीं हो सकती क्योंकि आप तो सोहेल हैं। ठीक है, तो अयाज अली जाएंगे बैंक में, वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे ओरिजिनल और अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी उस चेक के साथ अटैच करेंगे। आफ्टर देन बैंक वाले उस चेक की पेमेंट करेंगे अयाज अली को और उसके ऑन द बैक ऑफ द चेक 2 सिग्नेचर्स लेंगे, जो कि आपको मैंने बताया कि उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है। इट मींस अ पार्टिकुलर पर्सन हैव रिसीव्ड द अमाउंट। ऑर्डर चेक समझ में आ गई? सो ऑर्डर चेक क्या होता है? ऑर्डर चेक क्या होती है असल में? जिसके ड्रार जो है, ड्रार अकाउंट होल्डर जो है, वो बैंक को ऑर्डर करता है कि स्पेसिफिक पेमेंट सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को मिले जिसका हमने चेक पे नाम लिखा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर चेक। आफ्टर डिस्कसिंग एन ऑर्डर चेक, वी हैव एन अदर टाइप दैट इज क्रॉस चेक। सो व्हाट इज क्रॉस चेक? A cross check is one on which 2 parallel lines are drawn on the left side of the check with or without the words not negotiable or pays account only. Okay? Or in other words, we can say when 2 parallel lines are drawn across the face of the check with or without the words not negotiable or pays account only, this check is called a cross check. Cross check cannot be encashed over the counter in the bank.
It can only be encased through the bank account. Thus, the chances of fraud are minimized in this type of check. So, dear student, क्रॉस चेक क्या होती है? एक ऐसी चेक जिसके लेफ्ट साइड पे दो पैरेलल लाइंस ड्रा हो, दो पैरेलल लाइंस, ठीक है? दो पैरेलल लाइंस के बीच में या तो नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ हो, या तो पेज अकाउंट ओनली लिखा हुआ हो, या कुछ भी ना लिखा हुआ हो। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है विद आर विदाउट द वर्ड नॉट नेगोशिएबल आर पेज अकाउंट ओनली written in between these two parallel lines, that check is called a cross check. And as I told you, a cross check can never ever be encased over the counter. It can only be transferred from one account to another account. ठीक है जी? डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस चेक जो होती है ना हमारी, उसकी पेमेंट कभी भी काउंटर पे नहीं होती। ये चेक काउंटर पे कभी भी इनकेश नहीं होती, ठीक है? क्यों? कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होती है। जैसा कि हमने जैसे टू पैरेलल लाइंस बनाई, उस पे हमने लिखा है एक नाम मोहम्मद शोएब, ठीक है? तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शोएब के अकाउंट में जाएगी, मोहम्मद शोएब के अकाउंट में जमा होगी, ठीक है? उसके बाद हमने लास्ट में एक और पॉइंट लिखी है, द चांसेस ऑफ फ्रॉड आर मिनिमाइज इन दिस टाइप ऑफ चेक। ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो क्रॉस चेक होती है वो हमारी जब भी मिसप्लेस होती है, जब भी मिसप्लेस होती है तो डेफिनेटली ये उसी के ही अकाउंट में जाएगी जिसका उस पे नाम हो। तो जाहिर सी बात है, तो जो चेक हमारी जहां जाएगी तो डेफिनेटली वो तो सेम पर्सन नहीं होगा ना। तो उस हवाले से ये जो चांसेस होते हैं फ्रॉड के बहुत कम होते हैं इसमें, ठीक है? आफ्टर देन वी हैव एन अदर टाइप, दैट इज ओपन चेक. An open check can be produced by the payee to the bank and it can be encased over the counter. In an open check, the crossings are cancelled and are be signed by the drawer. So what is open check? In an open check, let's suppose we have a cross check, okay? When we have a cross check and when two crossings are cancelled and are be signed by the drawer. जब दो क्रॉसिंग्स हो, वो दो क्रॉसिंग्स हम कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है? कैंसिल करने के बाद जो ड्रार होगा वो उस टू पैरेलल लाइंस के ऊपर साइन करेंगे कि ये क्रॉसिंग मैंने कैंसिल की है। तो वो कैंसिल की हुई जो चेक होगी वो ओपन चेक हो जाएगी और उसका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन वही होगा जो बेयर चेक का फंक्शन है, ठीक है? मतलब जो कोई भी बैंक में लेकर जाएगा उसको ये पेमेंट मिल जाएगी। ओपन चेक ये मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि लेट सपोज हमने एक बंदे को क्रॉस चेक दी हुई है, वो कह रहा है कि मेरा तो बैंक में अकाउंट ही नहीं है, मैं ट्रांसफर कैसे करवाऊंगा अपनी चेक? तो हम वो क्रॉसिंग्स जो क्रॉसिंग होती है उस क्रॉसिंग्स को कैंसिल करके फिर हम वो जो अपना अकाउंट होल्डर होता है, जो ड्रार होता है, वो अपनी वहां सिग्नेचर करता है कि मैंने ये टू पैरेलल लाइंस या क्रॉसिंग कैंसिल किए, ठीक है? तो उसका जो टाइप बन जाएगा वो ओपन और जो फंक्शन हो जाएगा वो वही बेयर वाला, ओके? ओके जी, आफ्टर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ अ चेक वी हैव एन अदर टॉपिक, दैट इज डिसऑनर ऑफ अ चेक। मतलब हमारी चेक जो है वो बैंक से वापस क्यों आएगी? ऐसे कौन से रीजन से जो हमारी चेक बैंक से वापस आएगी, पास नहीं होगी, ठीक है? डिसऑनर मीन्स अनएक्सेप्टेबल और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ओके? नाउ व्हाट इज डिसऑनर ऑफ अ चेक? चेक कैन बी डिसऑनर्ड ड्यू टू द वैरायटी ऑफ रीजंस. डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन रीजंस. कुछ रीजंस है वो जिसकी वजह से बैंक वाले हमारी चेक वापस करेंगे। वो कौन से रीजंस हैं? तभी उसका वी हैव टू बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना चाहिए कि ऐसे कौन से रीजंस हैं या कौन से रीजंस हो सकते हैं। नंबर वन इज व्हेन द चेक इज आउट ऑफ डेट और पोस्ट डेटेड. व्हेन द चेक इज आउट ऑफ डेट, कोई ऐसी डेट लिखी हुई हो जो एग्जिस्ट ना की हुई हो, या पोस्ट डेटेड, जो डेट आई ही ना हो। लेट सपोज आज कोई चेक लेके जा रहा है बैंक में, ठीक है, और तारीख उसमें कल की डाली हुई है, ठीक है? जैसे लेट सपोज 20 मई 2019 आज है, हम बैंक में गए तो
उस चेक पे जो डेट लिखी हुई है वो लिखी है 21 मई 2019, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड। When the check is out of date or post dated, your check would be dishonored by the bank. Number two is when the date is not mentioned. It means when you are not going to write out the date in your check, definitely your check would be dishonored by the bank. After then, amount in words and figures differ. When the amount in words and figures differs, your check would be dishonored. कैसे वो ऐसे कि जैसे लेट्स सपोज हमने लिखा है 50,000 इन फिगर्स और वर्ड्स में हम मिस्टेकनली लिख गए हैं 5,000, ठीक है। या इन फिगर्स वी हैव रिटन 75,000, ठीक है, और इन वर्ड्स वी हैव रिटन 72,000 और 70,000। मतलब अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स जब डिफर होंगे तो डेफिनेटली हमारी चेक जो होगी वो डिसऑर्डर होगी। आफ्टर देन ड्राफ्ट सिग्नेचर डिफर आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द अकाउंट ओपनिंग। जो हम अपनी सिग्नेचर बैंक को प्रोवाइड करते हैं फॉर द फ्यूचर वेरिफिकेशन के पर्पस के हवाले से, तो जाहिर सी बात है जब ड्राफ्ट की सिग्नेचर या अकाउंट होल्डर जो हमारा होगा उसकी सिग्नेचर जब डिफर होगी कि जो आपने सिग्नेचर हमें प्रोवाइड की थी वो तो इस सिग्नेचर से चेंज है, थोड़ी चेंज हो रही है जो आज चेक आई है या जो आपकी चेक आई है, तो इस हवाले से ऐसी जो भी चेक होगी जिसकी सिग्नेचर डिफर करेगी तो वो चेक हमारी बैंक डिसऑनर करेगी। आफ्टर देन डार हैज क्लोज हिज अकाउंट। जब डार ने अपना अकाउंट ही क्लोज करवाया उसके बाद डेफिनेटली या किसी को चेक दी हुई है पहले से तो डेफिनेटली वो हमारी चेक डिसऑनर हो जाएगी। व्हेन द चेक इज म्यूचुलेटेड, म्यूचुलेटेड मीन्स अगर ऐसी कोई चेक है हमारे पास वो डैमेज हो गई है, फाइली है या फट गई है, डेफिनेटली तो ऐसी मतलब चेक्स होती हैं जिसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं फ्रॉड के। सो व्हेन द चेक इज म्यूचुलेटेड द चेक वुड बी डिसऑनर्ड बाय द बैंक। आफ्टर देन अल्टरेशन इन डेट फिगर वर्ड्स रिक्वायर ड्राफ्ट फुल सिग्नेचर। और डियर स्टूडेंट्स ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। Whenever any alteration is made in the check, a drawer will have to put his or her signature over there, ठीक है। लेट सपोज हमने डेट लिखी है 20 मई, तो नहीं आज तो 19 है तो हम 20 को 19 करेंगे, वहां अपनी सिग्नेचर पुट करेंगे, ठीक है। हमने अमाउंट लिखा है 50,000 और वर्ड्स में हम लिख गए 5,000, डेफिनेटली तो हम 5 को 50 करेंगे तो वहां भी अल्ट्रेशन होगी, तो वहां भी हम अपनी जो ड्रार होगा वो अपनी सिग्नेचर करेंगे। और ये सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ ड्रार का ही राइट है क्योंकि अकाउंट उसका है, जो अकाउंट होल्डर होगा उसी की ही सिग्नेचर वहां होगी और किसी की सिग्नेचर नहीं होगी। ओके, अल्ट्रेशन इन डेट फिगर वर्ड्स रिक्वायर ड्राफ्ट फुल सिग्नेचर। आफ्टर देन योर चेक कैन बी डिसऑनर्ड व्हेन द फंड्स आर इनसफिशिएंट। आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो, जो कि आपने अपना बैलेंस बैंक के साथ टैली ना किया हो, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो इनसफिशिएंट अमाउंट होगा तो आपकी चेक जो होगी वो डिसऑनर होगी। व्हेन द पेमेंट इज स्टॉप्ड बाय ड्रार, किसी भी वजह से जो ड्रार है, जो अकाउंट होल्डर है, उसने अपनी पेमेंट जो है वो स्टॉप करवाई है बैंक से, बैंक को ऑर्डर किया है कि मेरी जो भी पेमेंट है उसको स्टॉप कर दे, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो व्हेन द पेमेंट इज स्टॉप्ड बाय ड्रार your check would be dishonored by the bank. After then, stale check. It means a check which is older than the 6 months. A check which is older than the 6 months, that check would be dishonored by the bank. जो चेक का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ का होता है, उससे एक दिन भी अगर बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली वो चेक हमारी स्टेल कहलाएगी, स्टेल चेक हमारी जो भी होगी वो डिसऑनर हो जाएगी। नोटिस ऑफ द कस्टमर्स इंसेनिटी। और जब बैंक को कोई भी कस्टमर्स के इंसेनिटी का कोई नोटिस आएगा कि बाबा कस्टमर्स के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, वो अनसाउंड माइंड हो गया है, उसके साथ कोई ऐसी कोई ज़हनी कोई बीमारी हो गई है, उसके मतलब वो प्रॉपर तरीके से पहचान नहीं रहा, या ऐसी कोई भी मतलब उसको डिजीज हो गई है, तो उसका अगर नोटिस हम बैंक को दें तो बैंक उसकी पेमेंट स्टॉप करेगी। तो नोटिस ऑफ द कस्टमर इंसेनिटी इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। आफ्टर देन बायोमेट्रिक इज रिक्वायर्ड। जैसे कि आजकल बहुत सख्ती हो गई है जे एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग
बायोमेट्रिक कंपलसरी है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक अगर हमारी नहीं होगी बैंक में, तो आजकल उसकी जो पेमेंट है उसका डेबिट ब्लॉक हो रहा है। क्यों बाबा हमारा डेबिट ब्लॉक क्यों है? जब रीजंस का पता चलता है कि योर बायोमेट्रिक इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने पहले अकाउंट ओपन करवाने वक्त अपनी बायोमेट्रिक नहीं दी थी, तो अब आपकी बायोमेट्रिक होगी तभी आपकी चेक पास होगी। सो biometric is required. After then, death notice of the customer. Definitely, this is again very much important. Death notice of the customer. बैंक को एक नोटिस आ रहा है कस्टमर की साइड के, जो कस्टमर के पेरेंट्स हैं, जो कस्टमर का जो भी मतलब उसका कोई वारिस है, उसका कोई नोटिस आ रहा है कि जो आपका कस्टमर है उसकी डेथ हो गई है, तो बराए मेहरबानी इसकी जो भी पेमेंट है वो स्टॉप कर दें। तो उसका कोई अगर नोटिस आ रहा है तो डेथ नोटिस ऑफ द कस्टमर की वजह से भी जो हमारी पेमेंट होती है वो बैंक वाले डिसऑनर करते हैं चेक, ठीक है। आफ्टर देन पेज एंडोर्समेंट इरेगुलर एलिजिबल आर रिक्वायर्ड। पेज की एक इंडोर्समेंट होती है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंडोर्समेंट पे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लियरिंग एंड इट्स डिफरेंट, सॉरी क्रॉसिंग्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स की। क्रॉसिंग क्या है और क्रॉसिंग के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं? तो पेज इंडोर्समेंट करता है एक चेक पे, और आफ्टर देन वो चेक ट्रांसफर होती है एक आदमी से दूसरे आदमी तक। तो अगर पे इंडोर्समेंट कर रहा है वो इरेगुलर है, जो लिखना चाहे, जो इंडोर्समेंट होनी चाहिए वो नहीं की हुई है, या जो इसने इंडोर्समेंट तो की हुई है वो एलिजिबल है, नॉट एबल टू रीड और राइट, ओके। तो या रिक्वायर्ड, या इंडोर्समेंट की ही नहीं हुई है तो उसमें रिक्वायर्ड होंगी। तो पेज इंडोर्समेंट इज इरेगुलर एलिजिबल आर रिक्वायर्ड, द बैंक वुड dishonor your check. After then, the clearing stamp is required or require cancellation. This is again very much important. ये तकरीबन बैंक के हिसाब से होगी, मतलब होती है कि बैंक वाले कभी कभार क्लियरिंग स्टैम्प भूल जाते हैं, या क्लियरिंग स्टैम्प जो भी लगा हुआ होता है उसको कैंसिलेशन करना भूल जाते हैं। तो उस हिसाब से भी बैंक वाले, दूसरी बैंक वाले जहाँ चेक हमारी क्लियरिंग या पास होने के लिए जाती है, वो वहाँ ये चेक जो है अपनी डिसऑनर कर देते हैं, ठीक है। After then, dear students, any question if you want to ask, I would appreciate if you will ask any questions. Thank you so much. I hope you would like my lecture. Thank you.